Good morning, children. In the previous lecture, we have seen so many things about the vectors, how to perform cloning with the help of vectors. Today, we will see how the vectors can be inserted inside the host organism. That is, how to make the host competent enough to accept the recombinant vector. So now let us start with the topic. Now as you can see on the screen, competent host for transformation with the recombinant DNA. Now this is how to make the host competent enough in order to accept the given vector along with the desired DNA, that is the recombinant vector. Now since we know that DNA is hydrophilic molecule, it cannot pass through the cell membranes. So that is the reason, in order to force bacteria, we should make the bacteria to accept the DNA as such. Now this is called as increasing the competency of the bacterial cell so that it can accept the recombinant DNA. Now recombinant DNA here means vectors along with the desired DNA. So now let us, treating bacterial cell with specific concentration of divalent cations such as CaCl2 can increase the efficiency of the DNA to enter inside the bacteria through small pores which are present in the cell wall of the bacteria as such. Since DNA is hydrophilic, you know, and that is the reason why it cannot pass through the cell membranes, the DNA is treated with bacterial cell is first of all treated with cations like calcium CaCl2. Now after this, small pores are created in the cell wall of the bacteria. Then a system is prepared where the recombinant DNA, that is the vector along with the desired DNA, as well as the host cell, that is the bacteria cell, is placed in a very cold temperature, and then the temperature is suddenly raised to about 42 degree centigrade. This is called as heat shock method. पहले क्या करते हैं, टेम्परेचर अचानक घटा हुआ रहता है, फिर अचानक टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं. इस मेथड को हम बोलते हैं हीट शॉक मेथड. पहले टेम्परेचर घटा है, फिर 42 डिग्री तक रेस कर दिया, फिर अचानक उसको फिर से आइस में रख दिया पूरे सिस्टम को, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब वेक्टर है अलॉन्ग विद द डिजायर्ड डीएनए, प्लस होस्ट सेल को यानी कि बैक्टीरियम को. पहले आप बहुत कम टेम्परेचर में रखेंगे 0 डिग्री के पास, फिर अचानक उस टेम्परेचर को कुछ ही सेकेंड्स में 42 डिग्री तक इंक्रीज कर देंगे, फिर अचानक उस टेम्परेचर को घटा देंगे 0 डिग्री पे. तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन पोर्स क्रिएट हो जाते हैं जिसके थ्रू वेक्टर अलोंग विद द डिजायर्ड डीएनए इट कैन एंटर द होस्ट सेल, दैट इज द बैक्टीरिया इन दिस केस. नाउ ये एक मेथड है जिसमें कि हम वेक्टर को डिजायर्ड होस्ट के अंदर, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि वो वेक्टर चला जाए अलोंग विद द डिजायर्ड डीएनए और एक्सप्रेशन हो, यानी एक्सप्रेशन किसका, डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट हो और आरएनए डिजायर्ड प्रोटीन में जिसके लिए एक्चुअली आपने डीएनए लिया है वो वहाँ एक्सप्रेस हो, ये हम करना चाह रहे हैं. तो ये तो एक मेथड है. दूसरा एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन में हम डायरेक्टली डीएनए को एनिमल सेल के न्यूक्लियस में भेज देते हैं. अभी एक डायग्राम है वो ये शो करेगा अगले उस पर स्लाइड में, जो आपको ये शो करेगा कैसे आप डायरेक्टली जो है किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं inside the nucleus of the animal cell, and this process is called as micro injection. The third is Biolistic gene gun method. Biolistic gene gun method में हम high velocity particles लेते हैं in form of gold or tungsten and it is coated with DNA. DNA उसमें प्रेजेंट रहता है, उसको हाई वेलोसिटी देते हैं ताकि वो किसी प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत जल्दी से पहुंच जाए. तो इस मेथड को हम बोलते हैं बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड.
तो चलिए ये देखिए, ये कॉम्पिटेंट सेल बढ़ाने का तरीका है। यहाँ पे कॉम्पिटेंट सेल है इकोलाई, और इसको जो है आपने CaCl2 में ट्रीट किया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र किया गया एनिमल सेल के अंदर, बैक्टीरियम सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है। ये आप देख रहे थे किस तरह से जो है, जो हम अभी आपको बता रहे थे, CaCl2 में ट्रीट किया गया है। और यहाँ पे देखिए आप, इसको यहाँ ट्रीट किया। ये प्लाज्मिड जो है, इट इज़ अलाउड टू एंटर इनसाइड द सेल। 42 डिग्री 2 मिनट तक करते हैं, फॉलोड बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। और ये देखिए यहाँ प्लाज्मिड जो है वो एंटर कर गया है। सो दिस शोज दैट हीट शॉक मेथड इज़ वेरी एफिशिएंट। नाउ देखिए यहाँ पे आइस कोल्ड CaCl2 ट्रीटमेंट दिया हुआ है, सेल बिकम्स कॉम्पिटेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट, सेल अपटेक द एक्सोजेनस DNA, दैट इज फॉरेन DNA, तो ये इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, ना ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड के बारे में जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था, रिकॉम्बिनेंट DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। ये डायग्राम भी यही शो कर रहा है। ये देखिए होल्डिंग पिपेट है, ये आपका सेल है, दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ये देखिए आप माइक्रो इंजेक्ट कर रहे हैं विद द नीडल, रिकॉम्बिनेंट DNA डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर प्लेस कर रहे हैं। ऐसा होता है एनिमल सेल्स में। ये बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड है। सेल्स आर bombarded with high velocity micro particles of gold or tungsten and it is coated with recombinant DNA and this method is called as बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। हम टंजस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी देते हैं और उस हाई वेलोसिटी के साथ वो एंटर करता है किसी प्लांट सेल के अंदर, और उस गोल्ड और टंजस्टन पार्टिकल्स दे आर कोटेड विद द रिकॉम्बिनेंट DNA। तो आप देखिए ये टारगेट प्लांट सेल से यहाँ पे दिया गया है और ये यहाँ से एंटर कर जाएगा इसके अंदर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द होमवर्क असाइनमेंट। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक होस्ट्स competent? The reason behind it is that if you don't make the host competent, the desired DNA that is which is has been inserted inside the vector, it cannot enter inside the cell. So that is the reason why it is important to make the host cell competent enough to accept the recombinant DNA. What is heat shock method? I have already told you, increasing the temperature, decreasing the temperature, first decreasing the temperature, increasing the temperature, again returning back to decreasing the temperature in a very less interval of time, so that a transient pores can be created and the vector along with the desired DNA can enter inside it. What is micro injection? आपको बताया हुआ है, एनिमल सेल में हम लोग माइक्रो इंजेक्ट कर सकते हैं। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड के बारे में भी ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।